الدین الخالص. بڑیا دائی کی اس مسجد میں الحمدللہ یہ 135واں سال ہے، اور ہم سب لوگ یہاں پر جمع صرف اس لیے ہوئے ہیں تاکہ علماء کرام کی تقاریر سنیں اور اپنے اندر اصلاح کریں. پچھلے سال بھی میں آیا تھا اور اس سال بھی میں آپ کے بیچ حاضر ہوں. کچھ وقت میں آپ کے بیچ رہوں گا اور انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا. آج اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں. جلسوں میں بات ہو، جمعہ کے خطبے میں ہو، والدین کے یہ حقوق ہیں، پاس پڑوس والوں کے یہ حقوق ہیں، فلاں کے یہ حقوق ہیں، تمام حقوق پر باتیں ہوتی ہیں. لیکن بات نہیں ہوتی تو بہنوں کے حقوق کے تعلق سے. اسی مناسبت سے آج میرا موضوع ہے بہنوں سے ایک جذباتی رشتہ. ہمارا رشتہ کیسا ہے بہنوں سے؟ بھائی اور بہن یہ وہ رشتہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اسی طریقے سے محبت کا مجسم اگر دیکھنا ہے تو بہنوں کے آنکھوں میں دیکھی جا سکتی ہے. بھائی کے لہجے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہن سے کتنا پیار ہے. اور ماں باپ کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ انسیت اور محبت ہوتی ہے تو وہ بہن ہوتی ہے. بہن اور بھائی سب سے اچھے اور بہترین دوست ہوتے ہیں. یہ ایک بہترین دوست ہیں اور اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بھی ہوتے ہیں. یہ رشتہ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا ہے. یہ رشتے اللہ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں. سورہ فرقان اٹھائیے آیت نمبر 54 اور پڑھتے جائیے. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے هو الذی خلقک من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پانی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو خاندانی اور اسی طریقے سے سسرالی رشتے والا بنایا. اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پانی سے پیدا کرنے کے بعد خاندان والا بنایا. آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو اپنا تعارف پیش کریں گے کہ ہم یہاں پر سالار پورا میں ہم ابھی سے نہیں رہ رہے بلکہ ہمارے پر دادا اور پتہ نہیں کون کون آ کے رہ رہے، پورا خاندان نسب نامہ گناتے چلے جائیں گے. یہ خاندان اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے خاندان والا بنایا. اور اسی طریقے سے خاندان کے بعد انسان سب سے زیادہ جن کا گن گاتا ہے وہ اپنے سسرال کا. سسرال کا گاتا تو اللہ نے کہا کہ یہ سسرال بھی، یہ رشتہ بھی میرا ہی بنایا ہوا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور آپ اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات اس چیز پر قادر ہے. یہ رشتہ داریاں، یہ خاندان اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت ہی بنا سکتا ہے. پتہ لگا انسان اس دنیا کے اندر اکیلا نہیں.
بلکہ ان کے خاندان والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اور یہ تمام جو رشتہ داریاں ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں آپ کو ڈراتا ہے اور اسی طریقے سے ان کو باقی رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ سورہ نساء اٹھائیے، آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داری رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو اور توڑنے سے بھی ڈرو۔ یعنی اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اللہ سے ڈرو، اور یہ رشتہ داریاں جو ہیں، کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی آپ کی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پوتا ہے، یہ جتنی رشتہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار لیا جائے۔ کون ڈرتا ہے آج؟ بھائی بہن کا یہ رشتہ جو ہے یہ خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتوں میں سب سے زیادہ قریب تر ہے اور بڑا ہی جذباتی ہے بہن۔ یہ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ بہن اگر بڑی ہو تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے انسیت اور محبت میں ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اگر یہی بہن چھوٹی ہو تو بڑے بھائی بہن کے لیے بیٹی کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت پیرائی میں ایک بھائی بہن کا جذباتی رشتہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں بیان کیا ہے۔ اٹھائیے قرآن، سورہ قصص پڑھتے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام؟ پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بولیے بھائی۔ ہاں، ان کا واقعہ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بہن اور بھائی کے حساب سے بہترین پیرائی میں بیان کیا۔ فرعون خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کے پیدائش کے بعد میرا تخت و تاج سب چھن جائے گا۔ حکم دیتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بچے پیدا ہوں، لڑکے خاص کر کے، بچیوں کو چھوڑ دینا، لڑکے جو پیدا ہو قتل کر دو۔ قتل خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا، جدھر بچے پیدا ہو رہے مار دیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ماں کے اندر ڈر ہے کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے، محبت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو بچانا تھا ہی، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا کرو، اس کو صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ صندوق میں بند کرتی ہیں، دریا میں ڈال دیتی ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس سے کیا کہتی ہیں کہ جاؤ ذرا اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور جاتے وقت یاد رکھنا تمہاری نگاہ تو اس صندوق پر ہو، یعنی تم اپنے بھائی کو دیکھتے رہنا اور لوگوں کو گمان یہ ہو کہ تم کسی اور طرف دیکھ رہی ہو۔ بہن وہی کرتی ہے، بڑی بہن ہے، رحم کا مادہ ہے، بھائی کی محبت ہے۔ ماں تو ویسے ہی اپنے جگر کے ٹکڑے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر کے چلی آئی ہے، بہن دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ وہ صندوق بہتے بہتے یہاں تک کہ فرعون کے محل سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اس کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس میں بچہ ہے۔ بہن نے بھی یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، بہن ابھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچنے سے پہلے جتنی بھی عورتیں، تمام عورتوں کی ماں کے علاوہ سب کے دودھ حرام کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کہیں یہ وہی لڑکا نہ ہو۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، بڑا ہی معصوم خوبصورت بچہ ہے، رہنے دیجیے، ہو سکتا ہمارا سہارا بنے۔ اب بیوی کے آگے تو اچھے اچھے جھک جاتے ہیں، فرعون کی بھی یہی حالت ہوئی۔ ٹھیک ہے، شہر میں اعلان ہو گیا، کیسا ہے کہ دودھ پلانے والی دائی آ چکی۔ بہن کا کردار اب دیکھیے، اعلان ہونے کے بعد تمام عورتیں آ رہی ہیں، جو دائیاں ہیں
पहुंच रही हैं, सोच रही है कि मूसा को अपने सीने से लगाए पिलाए दूध, नहीं पी रहे हैं। जब बहन ये तमाम मामला देखती है, उसके बाद क्या है, अब उसे मौका मिल गया कि मैं अपने भाई की जान को बचा सकता हूं, मैं अपने बचा सकती हूं, मैं अपने भाई से करीब हो सकती हूं। वो फौरन कहती है कि एक औरत है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा हो वो उससे चिमट ही जाता है, उसके दूध को जरूर ही मुंह लगा लेता है। कहा गया कि जाओ जरा लेकर आओ। वो बहन दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने मां से कहती है कि अब जरा तुम रुक जाओ, जरा अपने आप को संभाल लो, तुम्हारा बुलावा आया हुआ है, चलो फिरौन के दरबार में। वहां पर उसके बाद क्या हुआ, वो जाने के बाद वो फिर जैसे ही गोद में लेती वो चिमट जाते हैं। गौर किया आपने इसमें? सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां ने जिम्मेदारी किसको दी? एक बहन को, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मां बाप के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा रहमदिल है तो वो एक बहन ही हो सकती है। आप मुआयना कीजिएगा, आप लोगों में जरा गौर करके देखिएगा, आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होंगे, जरा उनके हरकत और सकनात पर गौर कीजिएगा तो पता लगेगा, या बड़ी भी बहनें होंगी, जरा गौर कीजिएगा तो पता लगेगा कि एक बहन और भाई का रिश्ता ऐसा है कि वो लोग एक दूसरे के लिए रहमदिल है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई गलती की होगी, अब्बा को पता लग गया तो पीट कर बराबर कर देंगे। बहन को मालूम है कि गलती हुई है, लेकिन बहन क्या कह रही है? बहन का बाप पूछ रहा है तो बहन क्या है, वहां पर भाई को बचाती है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हम और आप भी बच्चे होंगे, बहन को सब मालूम है कि हमने क्या किया है, लेकिन बहन बाप को नहीं बताती। मालूम है कि मेरे भाई को तकलीफ है। अभी मैं चंद दिन पहले मेरी एक बेटी है, 2 बेटियां हैं मेरी, बड़ी बेटी जुवैरिया। अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी छोटी बेटी जो है थोड़ा चंचल है, अक्सर सामान छीन लेती है, मार देती है। एक दिन मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन को मार देती। अब वो जाकर एक दूसरी जगह पर वो सर रखकर रोने लगती है, तो मैं थोड़ा सा हंसने लगा और कहा कि तुम बड़ी हो, तुम नहीं मार सकते। तो कह रही कि हम ओके अप्पी हैं, हम नहीं मारेंगे, हम अप्पी है ना, हम बड़े हैं, उससे हम नहीं मारेंगे। वो सामान छीन ले रही है, कुछ नहीं कह रही है। ये जज्बा है मेरे भाइयों। बहन और भाई का रिश्ता बड़ा ही जज्बाती है। जरा आप जब गौर करेंगे, बहनें भाइयों के साथ वहां पर खड़ी होती हैं जहां पर पूरी दुनिया कट जाती है, जहां पर कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जरा एक वाकया मैं आपके सामने बयान करता हूं, और कितना जज्बाती रिश्ता है। इमाम रागिब अस्फहानी अपनी किताब मुहाज़रात अल-उदमा में बयान करते हैं, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 434 पर, कि हज्जाज बिन यूसुफ के पास चंद कैदी लाए गए। एक औरत बुलाई गई, उसका शौहर मौजूद है उन कैदियों में, बाप मौजूद है, भाई मौजूद है, बेटा मौजूद है, 3 लोग मौजूद हैं, शौहर, बेटा, भाई। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ऐसा है कि इनमें से, इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, क्या 2 को कत्ल कर दूंगा। क्या लम्हा रहा होगा उस बहन के लिए, उस बीवी के लिए, उस मां के लिए, कैसा मंजर रहा होगा जब उसके सामने कहा गया कि ये तुम्हारा शौहर है, ये बेटा है, ये भाई है, इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, मैं क्या 2 को कत्ल करूंगा। वो औरत कहती है कि ये मेरा शौहर है और ये इसका हमारा रिश्ता एक बेहतरीन रिश्ता है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में तरह तरह के अल्फाज के जरिए इसकी अहमियत को उजागर किया है। ये मेरा बेटा है, इसके ऊपर हमारे कुछ हुकूक हैं, और ये मेरा भाई है, बाप। इसी तरीके से फिर वो कहती है कि शौहर तो दूसरा मिल सकता है, बेटा दूसरा पैदा कर सकती हो, लेकिन भाई दूसरा नहीं मिल सकता है। हज्जाज बिन यूसुफ से कहती कि जरा गौर से सुनो, मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को चुनना चाहती हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये सुना कि अपने भाई को बचा रही है, शौहर को छोड़ दे रही है, बेटे को छोड़ दे रही है, अपने भाई के लिए ये इतना रहमदिल है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी ये बात ने मेरे दिल को छू लिया है, जाओ मैं तीनों को माफ करता हूं। ये जज्बाती रिश्ता है ये जज्बाती रिश्ता आज हमारा। आज कहां है बहना और भाई का रिश्ता कहां पर है, किस डगर पर है आज? क्या भाई बहन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या बहन भाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? अगर इसमें हम वोटिंग कर लें तो पता लगेगा बहनें तो तैयार है लेकिन भाई तैयार नहीं।
भाई बहन से रिश्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए? बड़ा ही जज्बाती रिश्ता है। ऐसा जज्बाती रिश्ता कि अगर उनके साथ हुस्न सुलूक कर ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से हमें जन्नत की बशारत दी है। करिए जरा हुस्न सुलूक। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? ये हम हालात को देखते हैं, उसके बाद हदीस सुनते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि अगर उनके साथ हुस्न सुलूक करें तो जन्नत की बशारत है। आज है, जब तक शादी नहीं हुई बहुत अच्छा चल रहा है, बहनों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, घर के अंदर आते अपने बहन को डांट डपट कर कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं, कपड़े पर परहेज नहीं है, हम आते अपने बहन को 4 बात सुना जाते हैं, खाना तैयार नहीं 4 बात सुना जाते हैं, कुछ खाने में कमी हो 4 बात सुना देते हैं, या अब्बा से कहकर सुनवा देते हैं। ये तमाम चीजें होती है, लेकिन इसमें दुश्मनी नहीं है, इसमें प्यार है, उनसियत है, मोहब्बत है। जरूरत जब पड़ती है बहन भाई इकट्ठा भी होते हैं, बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे से सामान लेते देते भी हैं। और इसी तरीके से ये क्यों मामला ना हो, वो एक ही पेट से जन्म लिए हुए हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। अपने माँ बाप की उन्होंने गरीबी देखी है, अपने माँ बाप की उन्होंने अमीरी देखी है, वो लोग एक साथ खाते पीते हैं, वो एक साथ अपने माँ बाप के गम में शरीक होते हैं, अपने माँ बाप के खुशियों में शरीक होते हैं। ये रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही भाई की शादी होती है, एक बिस्तर का मजा देने वाली एक औरत आ जाए, उसके बाद क्या है, चंद दिन तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उसके बाद ए जी सुनते हो, ए जी ओ जी, फिर ये 3G 5G 4G सब हो जाता है। कितना जल्दी इधर से उधर हो जाए पता नहीं। हो रहा है, ये मुआशरे का दुखता हुआ रग है जिस पर मैं हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूं। शाम को शौहर है, बीवी आने के बाद, बीवी अपने शौहर के आने के बाद कहेगी कि बहन ने आज हमारे साथ ये मामला किया, मां ने मेरे साथ ये मामला कर दिया। अरे आपको इत्मीनान नहीं है, आपको यकीन नहीं है, क्या वो मोहब्बत खत्म हो गई जो 25 साल और 20 साल से कायम थी? वही बहन जिसके लिए आप जान छिड़कते थे, वही बहन जो आप पर जान छिड़कती थी, वही माँ जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। ए जी ओ जी के अल्फाज के जरिया जब बीवी आपके जहन में कुछ बातें भरती है, उस वक्त हमारा किरदार क्या होना चाहिए? एक भाई के लिए शफीक, एक बहन के लिए शफीक भाई बन जाए, एक माँ के लिए बेहतरीन बेटे बन जाए, एक भाई के लिए बेहतरीन भाई बन जाए, एक वालिदैन के लिए हम सबसे बेहतरीन बेटे बनकर उस वक्त हम गूंगे बहरे हो जाए। गर्चे हमारे वालिदैन ने कुछ गलती की है, लेकिन हमारा हक नहीं बनता है कि उसके अपनी बीवी के सामने उसे डांटे डपटे, अपने बहनों के ऊपर जुल्म करे। मेरे भाइयों, इस जज्बाती रिश्ते को जरा समझिए। वो बहन जो आपके कपड़े धोती थी, वो बहन जो आपके जूठे बर्तन धुला करती थी, वो आपके दुश्मन कैसे आज हो गई? उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद ही कहना चाहिए कि जाने दो, छोड़ो। आपको वहां पर गूंगा बहरा बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर मामला में मां बाप से जाकर लड़ लिया जाए, और आज का बेशतर नौजवान जाके मां बाप से लड़ता बीवी के चक्कर में। क्या तीर मार लिए बीवी के चक्कर में लड़कर? आप बहनों की नजर में आपकी वो इज्जत रह गई? आज अगर बहनें कहती है ना कि भैया भाभी के आने के बाद बदल गए, गलत नहीं कहती हैं, गलत नहीं कहती मेरे भाइयों। आप गौर कीजिए मामलात पर। अगर वो कुछ कह रही है तो उसके बाद आप फौरन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो। जरा बहन के सर पर भी शफकत के हाथ फेरिए, पूछिए क्या मामला हो गया? अरे क्या हो गया? कोई मामला हो मुझसे कहो। लेकिन आज ऐसा मामला होता नहीं है, फौरन हम अपने बहन को डांट लगाते हैं। जरा सोचिएगा, आप एक बेहतरीन दोस्त थे शादी से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डांट डपट के बाद वो जाकर अकेले में कहीं रोती होगी? इस जज्बाती रिश्ते को जरा समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके इस डांट की वजह से आंसू बहा रही है। हुस्न सुलूक के मामले में अल्लाह से डरिए। जरा एक हदीस सुनिए, तिरमिज़ी के हदीस उठाइए 1916 नंबर की। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस के रावी, अल्लाह के नबी ने कहा, मन कान लहु सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन औ बिनतानि औ उख्तानि, कि जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो। गौर से सुनिए हदीसें।
جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا فلہ الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ہے حسن سلوک؟ بیوی کو لا کر مٹھائی کھلا رہے رات میں، اس کا حق ہے، رومال میں چھپا کر، جیب میں بھر کر آپ لا کر کھلا رہے، بالکل کھلائیے، اجازت ہے بھائی، وہ آپ کی شریک حیات ہے، لیکن بہن کے لیے بھی لائے ہیں۔ دال منڈی میں چلے جائیں گے، بیوی سے کہیں گے ارے خرید لو جو خریدنا ہے، جتنے مہنگے سوٹ ہو لے لو، لیکن کیا بہن سے آپ نے کہا؟ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کسی بہن کے والدین اس کے بھائی کی زندگی میں آج کے معاشرے میں گزر جاتے ہیں تو وہ ان بہنوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک حدیث اور سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے، 12498 نمبر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا من آل ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات حتی یبن او یموت عنہن۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور ان کا معاملہ کیا ہو کہ وہ دور ہو جائے، حتی یبننا، وہ دور ہو جائے یا بالغ ہو جائے یا اسی طریقے سے مر جائے، او یموت عنہن، یا اسی طریقے سے وہ بھائی ہی مر جائے، تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ان کا خرچ آپ کو کیسے اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا اسی طریقے سے 2 بہنیں ہوں، اور کیا معاملہ ہو کہ وہ تم سے دور ہو جائے یا انتقال کر جائے یا بالغ ہو جائے یا اسی طریقے سے تم مر جاؤ، ان کی کفالت تمہیں مرتے دم تک کرنی ہے، اور اگر ایسا کر لو گے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اس کا ہمارا ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھائی اور دونوں کو ملا کے کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، کر کے دکھا دو۔ یہاں پر صرف بھیڑ دیکھنے مت آؤ کہ چلو بنیادائی میں 135واں سال کا دیکھتے ہیں کیسا پروگرام ہے۔ یہاں کے ذمہ داروں نے کیسی تیاری کی ہے؟ امتیاز بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اسلم خلیفہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھنے مت آؤ، بلکہ یہ لے کر جاؤ کہ بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اگر بیٹیاں ہیں تو اس نے سلوک کریں گے، بیویوں کی تو سنیں گے تو ضرور، لیکن بہنوں پر ظلم ہم نہیں کریں گے۔ اگر یہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جتنے منتظمین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور آپ بھی جنت میں نبی کے قریب ہو جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، بہن بھائی کا رشتہ اتنا جذباتی ہے، اگر ان کے اوپر خرچ کیا جائے برکت کی امید سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہے کہ یقیناً برکت۔ کتنا جذباتی رشتہ ہے، ان کے اوپر اللہ کے نبی نے خرچ کرنے کا حکم دیا، کن کے اوپر؟ بہنوں کے اوپر۔ کس امید سے؟ برکت کی امید سے۔ آج ہر شخص کہہ رہا ہے مولوی صاحب سڑیا تو بک رہی ہے، برکتیاں نہیں، پیسوا تو آ رہا ہے لیکن پیسوا جا بھی رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، کہاں ہے برکت؟ آئیے برکت کا راستہ میں دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث نسائی میں 2532 نمبر پر طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی، قال قدمنا المدینة فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس وهو یقول۔ طارق المحاربی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ آئے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، برکتیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دینے کا جب معاملہ آئے تو شروعات ان سے کرو جن کے تم کفیل بنائے گئے ہو۔ ارے کون ہے بھائی جن کے کفیل ہم بنائے گئے؟ اس پر بھی غور کریں گے کہ صرف ہم یہی سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، تم شروعات وہاں سے کرو، اس پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس پر خرچ کرے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ثم ادناک۔ خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو پہلے ماں سے شروعات کرو،
माँ से तो रिश्ता रह नहीं गया पहले जैसा। हम खुद कफील बन गए ना, हम घर के गार्जियन बन गए, घर के जिम्मेदार बन गए। हमारे ऊपर एक हुकूमत करने वाली आ गई है ना, पैसे आ रहे वो गिन कर रख रही, हम नहीं गिन रहे हैं। माँ को तो देखने को नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे पहले माँ के ऊपर खर्च करो, फिर उसके बाद वह आबा का, फिर अपने अब्बा के ऊपर, अपने बाप के ऊपर खर्च करो, उसके बाद तीसरे नंबर पर अपने बहनों पर खर्च करो, नंबर 4 अपने भाइयों पर खर्च करो, सुम्मा अदना का, फिर उनके बाद जो भी रिश्तेदारियां उनके ऊपर खर्च करते जाओ। खर्च कर लेंगे, आज खर्च कर लेंगे आप? ईमानदारी से बताइए, बहन के ऊपर बीवी के मौजूदगी में खर्च कर लेंगे? सारी बिगाड़ यहीं से शुरू है, सब फसाद यहीं से शुरू होता है। अरे क्या मोहब्बत में आपको मिल गया है कि भाई के बहन की मोहब्बत खत्म हो गई? मानते हैं कि वो मोहब्बत सबसे बेमिसाली मोहब्बत होती कि एक अनजान लड़का और लड़की वो निकाह के बंधन में बनते, फिर उसके बाद वो मोहब्बत, फिर उसके बाद क्या मामला कि भाई बहन से रिश्ता तोड़ लिया जाए, उनके ऊपर खर्च ना किया जाए। एक बहन के लिए कोई सामान ला कर देख लो, ना ताना सुनने को मिल जाए तो कहना। मैं आज ये मुआशरे के ऊपर बार बार क्यों आ रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है आज। आपको करना क्या है? बरकतें हासिल करनी है ना, तो आप अपनी बीवी से कह दीजिए, जरा जाइएगा तो कह दीजिएगा कि सुनो, तुम्हारे ऊपर मैं तो तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा, ये तुम्हारा हक है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारा कफील बनाया गया हूं, लेकिन याद रखो कि अगर मैं बहन के ऊपर कुछ खर्च कर रहा हूं, तुम्हारा हक नहीं मार रहा हूं, तो मुझे टोकना मत, मुझे रोकना मत। और मुली गुफरान ने इस चीज को करके दिखाया है। मैंने पहले ही कह दिया था, ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी बहनें हैं, मैंने क्या देता हूं क्या लेता हूं आपको मतलब नहीं है इससे, इनके साथ हमारा क्या मामला है आपको मतलब नहीं है। आपका हक मारा जाएगा तो उस दिन आप आवाज उठाइएगा, प्रोटेस्ट उस दिन आप कीजिएगा, लेकिन अगर आपका हक नहीं मारा जा रहा, मैं बहन को 1 नहीं 4 सूट ला कर दे दूं, मैं 1000 नहीं 2000 दे दूं, आपको इससे मतलब नहीं है। उनका भी हक है हमारे ऊपर। बड़ा ही जज्बाती रिश्ता है दोस्तों, क्या क्या बयान करूं। जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूर शरीक बहन है। सीरत इब्ने हिशाम में यह वाकया मज़कूर है। इब्ने इसहाक अपनी रिवायत में बयान करते हैं कि जंग हुनैन में कुछ कैदी लाए गए। जब रास्ते से कैदी को लाया जा रहा तो उसमें शैमा नाम की एक औरत थी। जब रास्ते में कुछ तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मैं नबी की बहन हूं, मैं उनकी दो शरीक बहन हूं। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही तकलीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि ये औरत आपको भाई कह रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं क्या हूं? कहा कि मैं आपकी दो शरीक बहन हूं, आप मेरे भाई हैं। अल्लाह के नबी को भी यकीन हुआ, जमाना हो गया था। देखे, कहा कि जरा बताओ कोई निशानी है? हजरत शैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी मुसलमान नहीं हुई थी, इस वाक़े के बाद मुसलमान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बचपन में मैं अपने पीठ पर उठाई हुई थी, आपने मुझे उस वक्त दांत काटा था, वो निशानी आज भी मौजूद है। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक जज्बाती रिश्ता उभर कर सामने आ जाता है कि वो बहन जो इतना फख्र किया करती थी, लोगों में लेकर जाया करती थी, जब बहनें अपने भाई को लेकर आया करती थी और बड़ी बड़ी कहानियां बयान करती थी, उनकी तारीफ किया करती थी, तो ये बहन मुझे लेकर जाया करती थी। आज ये मेरे सामने कैदी की हालत में लाएगी। अल्लाह के नबी अपने चादर को बिछाते हैं और कहते हैं कि शैमा जरा इस पर बैठ जाओ। वो बैठती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो रहो, और अगर अपने कबीले वालों के साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं अपने कबीले वाले के साथ
साथ जाना चाहती हूँ। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उठती है इससे पहले सहाबा कराम को हुक्म देते हैं कि जरा ये माल, इतना माल लाकर इनको दे दो। वो अपने बहन को पर खर्च करते हुए उनको रुखसत करते हैं कि ये माल लेकर जाओ, ये गुलाम लेकर जाओ, ये सवारी लेकर जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन वो रुखसत हो रही है, सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जज्बाती रिश्ते की कदर करते हुए उनके ऊपर खर्च किया। मेरे भाइयों, जब नबी अपने दूसरे शरीक बहन पर खर्च कर सकते हैं तो मेरे भाइयों हम सगी बहनों पर क्यों नहीं खर्च कर सकते? खर्च करेंगे? कहिए इंशाअल्लाह करेंगे। खर्च करेंगे ना, आज से जरूर करेंगे। जरा और आगे बढ़िए। भाई बहन का रिश्ता कितना जज्बाती है। भाई बहन का रिश्ता इतना जज्बाती है कि अगर बहन को तकलीफ हो भाई बेकरार हो जाता है। एक हदीस उठाइए, बुखारी में यह हदीस 4500 नंबर की। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि मेरी फूफी रुबई एक लड़की को मारती, उसका दांत टूट जाता। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरी फूफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी फूफी जो है एक लड़की को घूसा मारती, उसका दांत टूट गया। अब उसके कौम वालों ने जब पता लगा तो लोग पहुंचे कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई, दिए तो ले लो, ये ले लो। नहीं तैयार, कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने के बाद उस कबीले के लोग, उस घर लड़की के घर वाले यही कहते हैं, अल्लाह के नबी किसास है, हमें किसास चाहिए, यानी दांत तोड़ा गया तो हम भी दांत तोड़ेंगे। एक भाई मौजूद है अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बहन के बारे में खबर मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हम किसास लेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ठीक है भाई, चलिए किसास लागू कर दिया जाता। अनस बिन नदर, तकलीफ हुई, जज्बाती रिश्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कानून कुदरत तो यही है। अल्लाह के नबी, क्या वाकई मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, कानून तो यही है और मैं फैसला भी सुना चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्फाज कहना था। अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ला वल्लज़ी बअसका बिल हक़, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, ऐ अनस, क्या अल्लाह की किताब के फरमान को तुम बदल दोगे? अल्लाह की बात को बदल दोगे? यानी तुम्हारी वो बहन है, तुम्हें अगर तकलीफ महसूस हो रही है तो क्या तुम ऐसे कर दे कि नहीं मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे? अल्लाह की किताब में हुक्म दिया गया है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो आई अनस, तुम्हारे बहन के दांत तोड़े जाएंगे। उसके बाद वो कसम उठाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। इतना कहना था, अर्श से फिर उस घर वालों के दिल में, उस कबीले वालों के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम डाल दिया। फिर उसके बाद वो लोग कहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माफ करते हैं, हमें किसास नहीं लेना है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कहा, इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबरहु, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो किसी चीज के लिए कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रखता है। कसम किस बात पर? बहन को तकलीफ हो जाएगी साहब, दांत तोड़े जाएंगे। अरे मेरी बहन है, बचपन में इसके साथ खेला कूदा हूं, इसके पैर में कांटे चुभते थे, मुझे तकलीफ महसूस होती, ये बीमार होती थी, मुझे तकलीफ होती थी। अल्लाह के नबी, क्या दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह की कसम दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर वो किसी बात की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रख लेता है। आज है ऐसा, भाई बहन की शादी हो गई, बहन घर में बीमार पड़ी है, कोई पूछने वाला है नहीं, पूछने वाला। बहन गरीब है, भाई बाप अमीर है। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि भाई का मन फिर चुका है, बहन खटिया पे पड़ी हुई है, बहन हॉस्पिटल में है, जाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ना हो कि बहन कुछ पैसे का तकाजा कर दे, कुछ मांग ले, नहीं जा रहे भाई लोग, और ऊपर से डोज दिया जाता है कि जाना नहीं है, जाइएगा मत। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप भी याद रखिए कि जब आप बीवी बनती उससे पहले बहन होती है। आपके साथ आपके भाई लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। जरा अपने शौहर को हुक्म देते वक्त कि नहीं बहन बीमार है, देखने मत जाओ, ये कहने से पहले ये सोच लेना कि मैं मेरे भाई को भी अगर मेरी भाभियां मना कर दे तब क्या हो।
बहन की तकलीफ भाई के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हिदायत का सबब क्या है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या उठाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं किनके बारे में? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम के बारे में। और फिर उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ, तलवार लेकर निकल पड़े कि आज तो जड़ से खत्म कर दे, छोड़ो हटाओ, न रहे बास न बजे बांसुरी। एक मुसलमान से मुलाकात हो गई, कहां जा रहे? जा रहे आज मोहम्मद का सर कलम करने की, नौज़ बिल्लाह। कहा अच्छा जरा अपने बहन की खबर लो, वो मुसलमान हो गई। हाँ मेरी बहन मुसलमान हो गई? कहा तुम्हारे बहनों सईद भी मुसलमान हो गए। रुख फेरना था, कहीं ऐसा ना हो तो कुछ अनहोनी हो जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलाली थे। फिर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, बहन कुरान पढ़ रही थी, आवाज देते कौन? कहा कि उमर बिन खत्ताब। बंद करते, उसके बाद फिर आकर दरवाजा खोलते, उमर फारूक ने कहा क्या पढ़ रही थी? कहा कुछ नहीं। कहा मैं सुन चुका हूं, तुमने बाप दादा के दिन को छोड़ दिया। इतना कहना था कि अपने बहनों सईद को मारने लगे। और जब शौहर को तकलीफ होती है तो बीवियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। बहन ने देखा कि अब मेरे शौहर के साथ इनकी लड़ाई हो रही है, ये उठा पटक शुरू है। यहां तक कि तारीख निगारों ने लिखा है उमर इब्न खत्ताब अपने बहनों सईद के सीने पर बैठ जाते हैं। उनकी बहन जब ये देखती है कहीं ऐसा ना हो मेरे शौहर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, फौरन वो आती हैं, अपने शौहर को बचाने की कोशिश करती हैं। हजरत उमर फारूक अपने बहन को भी मारते हैं, यहां तक कि वो किनारे हट जाती है और वो उसके चेहरे से खून बहने लगते हैं। उसके बाद उनकी बहन कहती है ऐ उमर, क्या मुझे इसलिए मारा जा रहा है? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान ले आई हूं। कहा गया कि हाँ, इसलिए तो कहा सुन लो ऐ उमर, जो बनाए कर लो, लेकिन अब मेरे दिल से इस्लाम नहीं निकल सकता। इतना सुनना था। उमर फारूक का फिर गुस्सा बढ़ता है। जैसे ही रुख फेरते हैं, बहन को देखते हैं, चेहरे से खून जारी है, चेहरे से खून बह रहा है। दिल फौरन नर्म पड़ गया, फौरन वो सुस्त पड़ जाते हैं, सारा गुस्सा ठंडा हो गया, बहनों के सीने से हट जाते हैं। उसके बाद अपने बहन के पास आते हैं। अब कोई गुस्सा नहीं है, कोई डांट फटकार नहीं है, अपने बहन के खून को देखते हैं। सारी तकलीफ उस बहन के ऊपर जो बीती है उसको याद करके वो थोड़ा सा गमज़दा हो जाते हैं। कहते हैं बहन क्या पढ़ रही थी जरा बताओ। बहन ने कहा कि अभी आप ऐसे, एक लंबा वाक़या है वहां नहीं, लेकिन बताने का मकसद यह है कि बहन के चेहरे पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जैसे जलाली शख्स ने भी जब खून को देखा तो उनका भी दिल नर्म पड़ गया। हमारा दिल नर्म पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जरा और आगे बढ़ते हैं। बहन भाई का जिस रिश्ता इतना जज्बाती है कि सिर्फ भाई ही कुर्बानी नहीं देते हैं, कभी कभी बहनें भी कुर्बानी देती हैं। सिर्फ भाई लोग कुर्बानी नहीं देते हैं कि माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों को पाल रहे हैं। जो ऐसे भाई हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माल में बरकत दे। जो ऐसे भाई है जो अपने बहनों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अल्लाह के ये याद रखिएगा कि सिर्फ भाई कुर्बानी नहीं देते, कभी कभी बहनें भी कुर्बानी देती। 9वीं सदी के एक मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहन है 3 साल बड़ी, बड़ा जज्बाती रिश्ता, बहुत जज्बाती रिश्ता। वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी बहन जो मुझसे 3 साल बड़ी थी वो खुद पहले पढ़ी बेहतरीन तरीके से, और उस वक्त की सबसे बड़ी आलिमा थी। वो खुद पहले पढ़ती हैं और उसके बाद उनकी तरबियत, उनकी मेहनत से इस दुनिया को और कयामत तक के लिए एक बड़े मुहद्दिस हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बहन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत पढ़ने वाली थी, वो बहुत लिखने वाली थी, और इसी तरीके से उसका ज़हन जो था वो बड़ा ही अजूबा था, यानी ज़हन की भी बहुत तेज थी। वो एक नेक थी, एक नेक औरत थी, वो एक मुहसिन थी, वो मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त थी। वो एक फिर तारीखी जुमला कहते हैं, वही उम्मी बाद उम्मी, वो मेरे हकीकी माँ के बाद
मेरी एक माँ थी, यानी उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मेरे कपड़ों का इंतजाम किया, मेरे लिए खाना बनाती थी। मेरे भाइयों, आज ऐसे बहनें माशरे के अंदर मौजूद होंगी जो अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दी होंगी। जरा जाइए पता कीजिए तो आपको पता लगेगा। अगर आपके माँ बाप, अगर आपके माँ के बाप और माँ बचपन में गुजर गए तो जरा अपने माँ से वाकया पूछेगा तो आपकी माँ भी बताएंगी कि हमने भाइयों के साथ क्या किया है, हमने भाइयों के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। तो मेरे भाइयों, जरा इस बात को याद रखिएगा कि सिर्फ भाई नहीं, बहनें भी कुर्बानी देती है, जैसे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहन ने कुर्बानी दी। जरा एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहन और भाइयों का रिश्ता इतना जज्बाती होता है कि इस माशरे के अंदर दोनों तरह के भाई बहन हैं, बेवफा भी है, बावफा भी। जो अगर बहनें थोड़ी सी गरीब हो जाए, बाप अमीर हो, भाई अमीर हो, बहनों की तरफ नहीं देखते, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। जो अमीर बहन हैं, 3 बहनें हैं, 2 बड़ी अमीर हैं, 1 बहुत गरीब है, उन शादी पड़ जाए भाई के घर पे, जो अमीर बहनें हैं उनको घड़ी घड़ी बुलाते रहेंगे, चलो डलमंडी चलना है, फलाना सामान लाना, ये लाना, वो लाना। गरीब बहन को नहीं पूछा जा रहा है। बेवफा भाई मौजूद हैं। घर के अंदर शादी का माहौल जब होता है तो दोनों अमीर बहनें भाई के साथ साथ हैं, और जो गरीब बहन वो एक किनारे को पड़ी हुई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कहा तमाम मामलात में पूछा नहीं जा रहा, जहां जरूरत समझ में आती है ठीक है। घर का अगर जब मोबाइल में फोटो भी अगर शादी के आप देखेंगे तो पता लगेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि शादी में फोटो खिंचवाना जायज है, अगर देखा जाए तो उसमें गरीब बहन अलग नजर आती है। लेकिन एक भाई, तारीख के हवाले से बयान करता हूं, एक भाई वफादार ऐसा गुजरा है जिसने अपने 9 बहनों के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी। हदीस उठाइए, बुखारी की हदीस 5079 नंबर के हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस कहते कि जंग से वापस आ रहे थे, मेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, चल नहीं रही थी, भगाने की कोशिश कर रहा हूं। इतने में एक पीछे से एक तेज सवार ऊंट वाला आता है, मेरे ऊंटनी को नेजा चुभा देता है, अब बहुत तेज भागने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, कहते हैं कि जाबिर किस बात की जल्दी है, बहुत तेज जा रहे हो, किस बात की जल्दी है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है। क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी इस बात की है कि मैंने शादी कर ली है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिकरन अम सय्यिबन, जरा जाबिर बिन अब्दुल्ला ये बताओ कि वो लड़की कुंवारी है या बेवा है? फकुल्तु सय्यिबन, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते कि मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बेवा औरत है जिससे मैंने शादी की है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बिल्कुल नौजवान सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए, तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती। नबी का ये फरमाना था कि तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, तुम भी एक कुंवारे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कहना था। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, उन्होंने पीछे मेरे 9 बहनें छोड़ी हुई हैं, हाँ उनका ख्याल मुझे रखना है, उनकी तरबियत का ख्याल मुझे रखना है, उनके हर तरीके की जरूरत मुझे पूरी करनी है। अगर मैं कुंवारी लड़की से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करता तो वो एक्सपीरियंस वाली नहीं होती, घर चलाना क्या होता उसे ना मालूम होता, वो भी मेरी छोटी बहनों की तरह वो भी खेल कूद में लग जाती, घर की जिम्मेदारी क्या उसे ना मालूम पड़ता, बहनों के कैसे हमें उनकी तरबियत करनी उसे ना मालूम होता। इसलिए मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सय्यबा, एक बेवा औरत से शादी की है ताकि मेरे बहनों की तरबियत भी हो जाए, मेरे घर का देख रेख भी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं, घर के करीब पहुंच गए हैं, कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला जरा रुक जाओ और अंधेरा हो जाने दो, ताकि घर में जब तुम पहुंचो तो बीवियां कंगी कर ले। मेरे भाई जब पता ये लगता है अगर कभी सफर से आओ तो बीवी को पहले ही बता दो, मैं आने वाला हूं ताकि आपके लिए सच जाए, सवर जाए। अल्लाह के नबी के पास जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं। फिर जब उठते हैं, जाने का वक्त होता है, अल्लाह के नबी एक थैली थमाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने नबी को अपने वो तमाम वाक़यात बयान किए थे, नबी ने खुश होकर मुझे कहा कि ठीक है तुमने अपने बहनों के लिए ये किया है, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है, ये थैली है, इसमें कुछ चीजें हैं, ले जाओ खर्च करो। वो कहते 40 साल तक खर्च करता रहा, उसमें कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि
دور آتا ہے کن کا؟ حضرت حسین کا دور آتا ہے، اس دور کے اندر میری وہ تھیلی چوری ہو جاتی ہے، اس وقت تک میں خرچ کرتا رہا۔ میرے بھائیوں یہ برکت کس وجہ سے تھی؟ بہنوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے۔ بہنوں کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ نہیں رکھ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے، 40 سال تک خرچ کرے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا تھیلا دے دی تھی بھائی، پڑھیں گے تو پتہ لگے گا چھوٹا ہی سا، لیکن یہ برکت، بہنوں کا خیال رکھے برکت آ جائے۔ جب آپ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں سوچے، ذرا اپنے بہنوں کے حسن سلوک کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں سوچ لو۔ جب آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونا لاتے ہیں، ذرا اپنے بہنوں کے بارے میں سوچ لو کہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کے لیے بھی کھلونے کی ضرورت ہے۔ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے نہیں لا سکتے، لیکن ہماری بیویاں برداشت نہیں کرتی ہیں۔ آج ہماری بیویوں کو برداشت نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں، ذرا معاشرے پر نظر ڈالیے۔ آپ کے بچے شان و شوکت سے پل رہے ہیں، آپ کو بہنے کو حسن سلوک کا خیال نہیں ہے، ذرا خرچ کر لیجئے۔ بچوں کا جب کھلونا لائیے تو اپنے بھانجوں کے لیے بھی لے آئیے، اپنے بھانجیوں کے لیے بھی لے کر آئیے، ذرا بہن کے لیے یہ حسن سلوک ہو جائے گا۔ بہن کی بھی دڑاس بنے گی کہ چلو میرے بچے مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ میرے ماموں کے لڑکے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس جذباتی رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی نہیں، یہیں تک نہیں بلکہ والدین اگر زندہ ہوں تب بھی بہنوں پر خرچ کرے۔ اگر والدین کا انتقال ہو جائے ان کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ اگر ہم اپنے بھائی اور بہن کے جذباتی رشتے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم والدین بن کے رہیں۔ ذرا بہنوں کو کبھی کبھی اپنے گھروں پر بلایا کیجئے، ان سے ذرا باتیں کیا کیجئے، بچپن کی یادیں تازہ کیا کیجئے، ان سے پوچھا کیجئے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، کوئی چیزیں ہو تو بتائیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کیجئے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بے وفا بھائی مت بنیے گا، ایک ظالم و جابر بھائی مت بنیے گا۔ آپ اپنے بہن کا میراث میں حصہ ضرور دیجیے گا، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن نے یہ ان کو حق دیا ہے، اگر آپ نہیں دیے وہ تو آج جا کر عہد کیجیے، آج جا کر دیجیے۔ میرے بھائیوں آپ کو بہن کے جذباتی رشتے کا احساس نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آج بھی آپ کے دل کے نہخانے میں اپنے بہن کے لیے ایک پیار ہے۔ جب بہن کا انتقال ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کے آنکھوں میں، بوڑھے بھائیوں کے آنکھوں میں بھی میں نے آنسو دیکھے ہیں۔ میری پھوپھی کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، جب میرے والد نے فون کیا تھا اس وقت میرے باپ کی آواز، میرے والد کی آواز ایسی تھی کہ وہ رو رہے تھے، اور مجھے تعجب ہوا کہ آج تک میں نے اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک بہن کے موت پر میں نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ جذباتی رشتہ دم توڑ چکا ہے میرے بھائیوں۔ ذرا سوچئے، دل پر ہاتھ رکھیے، کہاں ہے بہنوں سے رشتہ ہمارا آج؟ کہاں ہے بہنیں ہماری؟ کہاں ہے بہنوں سے پیار اور محبت؟ یہ بیوی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی برکت چاہیے تو ذرا آپ نے بہنوں کے اوپر بھی خرچ کر لیجئے میرے بھائیوں۔ یہ چند پیغامات تھے جو میں آپ کو تک پہنچانا چاہتا تھا میرے بھائیوں۔ بس میں نے ان تمام باتوں کو اس لیے بیان کیا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اس میں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگ جو اب تک بہنوں سے روٹے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بہنوں سے جا کر معافی تلافی کریں، ایک دوسرے کے ہم غمخوار بن جائیں، ایک دوسرے سے پہلے جیسے محبت کرنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے گلہ شکوہ دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، ایک بنا دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔